Hello students, this is our fourth chapter, Molecular Basis of Inheritance. In the previous video, that is part 1 of this video, we have studied DNA packaging and all the experiments, and we have studied the discovery of DNA and the genetic material in the DNA के लिए रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे, तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग ने डीपली देखा है। कौन से तीन थे? ग्रिफ्ट, मैकअवेरी एंड थर्ड वाज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So students, every time when a cell divide, it must make a complete copy of all its gene. ये तो हम सभी को पता है। Then it means a dividing cell has to carry out DNA replication at each cell division, है ना? Then the replication of DNA requires precise accuracy because even an error rate of 0.01%, that is a mistake per 1000 nucleotide, causes significant accumulation of gene mutation. इसका मतलब समझा कि जितनी बार सेल अपने आप को डिवाइड करता है उतने बार उसे अपना डीएनए को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जीन में म्यूटेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का इम्पोर्टेंस, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. Because of its unique structure, it is able to control the synthesis of other molecules of the cell. At the same time, when cell reproduce, the DNA also should duplicate itself to distribute equally to the daughter cell. As a carrier of genetic information, DNA has to perform. इतना हमें अब तक क्लियर हुआ। सेल के साथ डीएनए को भी डिवाइड होना कंपलसरी है। देन इसका मैकेनिज़्म क्या है? Watson and Crick suggested a very simple mechanism of DNA replication on the basis of its double helix structure. The quote their original statement that it as follows: "It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for a genetic material." ये किसने बोला है? वैटसन एंड क्रिक ने, ये उनका स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है? इट इज हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanism for the genetic material. Then अब हम लोग पहले इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। ओके, तो मैकेनिज़्म में पहला, the scheme suggested that the true strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. Okay, then after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strain. ये भी पता है कि जैसी रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो एक डीएनए एक नए पेरेंटल होगा और एक जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेंड होगा, है ना? देन दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. What it is called? Semi-conservative DNA replication. Then during replication, okay,
the weak hydrogen bond between the nitrogenous bases of nucleotide separate. Okay, during replication, the weak hydrogen bond between the nitrogenous base of nucleotide separate the two polynucleotide strands of DNA, also separate and uncoil. दिख रहा है ना इमेज में कैसे वो लोग सेपरेट होके अनकॉइल हो गए. Then the separated strands are complementary to one another. This is the important कि वो लोग complementary हो गए. फिर उसके बाद each nucleotide of separated chain attracts its complementary nucleotide from cytoplasm. एक के बाद एक देखो प्रोसेस हो रहा है. देन वो अट्रैक्ट करेगा. उसके बाद once nucleotide are attracted by their hydrogen bond, their sugar radical unite through their phosphate component. Okay, then each strand of DNA serve as template or model on which its complementary strand is synthesized. Okay, एक स्ट्रेन जो है डीएनए का वो सर्व करेगा एज टेम्पलेट और मॉडल. ओके, on which its complementary strand will be synthesized. Okay, then अब ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है? This method of DNA replication is called semi-conservative method because each daughter DNA molecule is a hybrid, that is conserving one parental strand and the another newly synthesized strand. Then experimental proof क्या है? It is now proven that DNA replicates semi-conservatively. Okay, and it was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms also, such as plants and human cell में भी DNA का replicate होने का तरीका सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है. ओके, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, फिर एक आता है मैथ्यू एंड मेजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टैलिन एक्सपेरिमेंट विच वाज इन 1958. ओके, फिर इसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से they grew E. coli in a medium containing NH4Cl. 15 raised to N is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generations. The result was that is N is to 15, that is nitrogen ये जो heavy molecule है ये was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. Then फिर ये जो heavy DNA molecule था can be distinguished from the normal DNA by quantification in a cesium chloride, that is destiny gradient. Please note that N:15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on densities. डेंसिटीज का मतलब पता है कि आगे फिर वो लोग जो उनकी डेंड्रिट्स थे वैसे उनके साथ फिर आगे जाके डिवीजन हो सकता है. ओके, ये सब कौन बोल रहा है? मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकिल स्टेल का एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. फिर उसके बाद वो लोग ने क्या किए कि देन वो लोग ने सेल्स वे ट्रांसफर्ड इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl and samples at various definite time intervals were taken as the cell multiplied. फिर DNA
that remained as double-stranded helix were extracted. फिर उनमें से वो DNA जो कि डबल स्ट्रैंडेड था वो एक्सट्रैक्ट हुआ. Various samples were separated independently as CSCI gradients to measure the densities of DNA. ये densities मतलब जो उसके strands होते हैं ना उसी को बोलते हैं. Then ये है DNA का रेप्लिकेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. मतलब इस तरीके से वो लोग ने DNA को डबल स्ट्रैंडेड है बोल के सेपरेट करने को दिखाए. देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, हैवी था, हाइब्रिड था, लाइट था, हाइब्रिड था, ये सारी चीज़ें इसमें अपन को देखने मिल रही है. ओके. Then DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium after 20 minutes had a hybrid or intermediate density. E. coli divides in 20 minutes. E. coli कितने मिनट में डिवाइड करता है? 20 मिनट में. Then DNA extracted from culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation, was composed of equal amount of this hybrid DNA and that of light DNA. ओके, ये इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़े. फिर एक और एक्सपेरिमेंट था टेलर एंड कॉलिग्स का एक्सपेरिमेंट. फिर इसमें क्या होता है, दे सप्लाइड root of Vicia faba with radioactive tritiated thymidine for a few days till all the chromosomes of dividing cell become radioactive. Okay. फिर thereafter radioactive chemicals was withdrawn and replaced with non-radioactive chemicals. Okay. Then टेलर और कैलिक्स के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन द फर्स्ट जनरेशन one of the two chromatids of each chromosome remained radioactive while the second chromatid was non-radioactive. In the second cell generation, 50% of the chromosome were unlabeled while in the remaining 50% labeling remained only in one of the two strains. This is possible only if one of the two strands of the chromosome, one is formed afresh while the other is conserved at each replication. हम लोग सब रेप्लिकेशन की बात हो रही है अभी. फिर उसके बाद इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये लोग ने देखो ऐसे लेबल किए. ये क्रोमोसोम विथ 3H थायमिडीन लेबल्ड था, एक था अनलेबल्ड. फिर फर्स्ट जनरेशन में ये फर्स्ट जनरेशन हुआ. फिर सेकंड जनरेशन में अनलेबल्ड और लेबल्ड अनलेबल्ड का ऐसे कॉम्बिनेशन बना. ओके. देन अब इसका मशीनरी एंड एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अभी तक हम लोग जो पढ़े वो सब उसका थियोरी था. ओके, दैट वाज नॉट इवन दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक बार समझने के लिए हम लोग ने वो चीज़ें पढ़ी. फिर उसके बाद मशीनरी एंड एंजाइम्स पे आए. तो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस that requires a number of enzyme, protein, factor and metal ions. Okay, क्या क्या चाहिए? Number of enzyme, protein, factor and metal ions. In eukaryote, it occurs in nucleus during S phase of the cell cycle. Remember, कहाँ पे हो रहा है? S phase of the cell cycle. It is semi-discontinuous in eukaryotes. फिर इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ हो रहा है रेप्लिकेशन? साइटोप्लाज्म में. And DNA replication in bacteria occur prior to fission. Okay. Then eukaryotes में S phase में, prokaryotes में cytoplasm में. Which is important है. And it is a DNA replication is a complex multi-step process that requires a number of enzyme, protein factors
and metal ions. Okay, then DNA polymerase, DNA ligase, primase, topoisomerase, हेलिकेस, ये सब है इसके एंजाइम्स है. ओके, देन फिर डीएनए पॉलीमरेज. अब हम लोग इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे. ओके, तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज इज़ इम्पॉर्टेंट पहला तो. फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज is the main enzyme, okay, which take part in combining deoxyribose nucleotide to form new DNA strand. इतना याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है और इसका क्या पार्ट है, दैट इट कंबाइन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स. ओके, देन डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग. देन थर्ड पॉइंट में prokaryotes, for example E. coli, have three main types of DNA polymerase. That is, first was DNA polymerase 1, second है DNA polymerase 2, third है DNA polymerase 3. Clear students? Then DNA polymerase होता क्या है? It is the main enzyme responsible for DNA replication in E. coli. Okay, it is the main enzyme responsible for DNA replication in E. coli. Then polymerase 1 की अगर हम लोग बात करेंगे, it is also called Kornberg enzyme and to function primarily in DNA repair. DNA 1 and 2 की बात हो रही है, that it function primarily in DNA repair and they are also called as Kornberg enzyme. It is named so because it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. क्यों उसे ऐसे नाम दिए? क्योंकि वो DNA template को यूज़ करता था. For what? For catalyzing the polymerization of deoxynucleotides. These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. समझो, इतने शॉर्ट टाइम में उनको इतना सब कुछ करना होता है. देन DNA polymerase. Eukaryotes have 5 types of DNA polymerase. That is alpha, beta, gamma and E is alpha. So students, हम लोग पढ़ रहे थे DNA polymerase. यहाँ पे यूकैरियोट्स के पास 5 टाइप का DNA polymerase होता है. अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. ओके, तो ये सब का, ये जो पॉलीमरेज अल्फ़ा है, पॉलीमरेज बीटा है, पॉलीमरेज गामा है और पॉलीमरेज डेल्टा है, ये सब जो पॉलीमरेज है इनका अपना एक अलग फंक्शन होता है. ओके, तो पॉलीमरेज अल्फ़ा का फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, पॉलीमरेज अल्फ़ा का फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन. फिर पॉलीमरेज बीटा का है डीएनए रिपेयर. पॉलीमरेज गामा का है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर. देन डेल्टा का है रेप्लिकेशन एक्टिविटी. फोर्थ पॉलीमरेज एल्पेजिरॉन का है पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हीला सेल्स. ये सब क्या होता है, हम लोग आगे ये सब के बारे में एकदम डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं. ओके, देन अब जो डीएनए लाइगेज होता है वो क्या होता है, पहले वो देखते हैं. तो डीएनए लाइगेज एंजाइम joins newly synthesized fragments of DNA. मतलब जो डीएनए टुकड़े टुकड़ों में बंटता है, हाँ, डीएनए जो टुकड़े टुकड़े में बनता है उसको सिंथेसाइज करना, उनको जोड़ने का काम होता है डीएनए लाइगेज का. और जो डीएनए लाइगेज है it was discovered by Corona. Then
फिर अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डीएनए दो अलग अलग स्ट्रैंड में था, अब वो लोग अब एक दूसरे के साथ अनवाइंड होगा एंड इसके पूरे सारे प्रोसेस हो गए, जो न्यूक्लियोटाइड हो रहा है, प्राइमर बन रहा है, एवरी प्रोसेस अब हम लोग यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म होता कैसा है या तो इसका मैकेनिज़्म है कैसा। ओके स्टूडेंट्स, देन अब ये सारे जो है ये है पूरे स्टेप ऑफ डीएनए मैकेनिज़्म। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज़्म। तो पहला क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। फिर एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। प्राइमर का काम जब हम लोग घर बनाते हैं तब प्राइमर का क्या फंक्शन होता है कि वो अपने वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग इसके फंक्शंस आगे देखेंगे। ओके, देन बेस पेयरिंग, जो बेस था उनमें पेयर होना भी तो है। फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। फिर उसके बाद लास्टली आता है प्रूफ रीडिंग। अब ये भी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। देन origin of replication begins at a particular spot called origin of replication or it is called as uri। मतलब रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्पॉट पे स्टार्ट होता है। देन bacterial and viral DNA has a single origin of replication। This is very important। फिर उसके बाद it function as a single replicating unit or replicon। Okay students, then फिर in eukaryotes there are number of origin of replication। Okay, and it has several replicating segments or replicons, that is multi-replioconic। मतलब बहुत ज़्यादा जब रेप्लिकॉन्स है, सेवरल रेप्लिकेटिंग सेगमेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी रेप्लियोकॉनिक। देन स्टूडेंट्स जो सिंगल थे उन्हें हम लोग रेप्लिकॉन बोल रहे थे, और जब यूकैरियोट्स में मल्टीपल है, सेवरल है, तो हम लोग उधर मल्टी रेप्लियोकॉनिक बोल रहे हैं। तो ये टर्म्स है दोनों। देन उसके बाद हमारा जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ओके, तो इसे पहले हमें एक्टिव करना पड़ेगा। उसका एक्टिवेशन कैसा होता है, तो ये पढ़ने से पहले इतना हमें याद रखना है कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, इट अकर्स फ्रीली इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इतना समझा। फिर उसके बाद ये जो है वो 4 टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। पहला क्या है, DAMP, दैट इज़ डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। फिर सेकंड है डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, DGMP। थर्ड है डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, DCMP। फोर्थ है DTMP और डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। वन थिंग यर टू रिमेंबर इज़ कि ये सारी चीज़ें अभी मोनोफॉस्फेट है। अब ये लोगों को ये लोगों को अभी एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इन्हें एक्टिवेट कैसा करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, दे आर फर्स्ट phosphorylated and changed to active form which have 3 phosphate residues instead of 1। okay, then enzyme phosphorylase is required along with energy। ये चीज़ है कि phosphorylase जो एंजाइम है ये along with energy required है। फिर जब ये सब प्रोसेस हो रहा है
तो अब जो हमें मिलेंगे ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो अभी हमें मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट DATP, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट DGTP, DCTP डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और DTTP डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब ये मोनोफॉस्फेट का क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो इनका ये है केमिकल रिएक्शन इनका कि DAMP, DGMP, DCMP, DTMP जब फॉस्फोरलाइज होगा विथ एनर्जी तो क्या बन जाएगा, DATP, DGTP, DCTP, DTTP। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ गया।